أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا بالقاسم محمد ولعنة الله على من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين أما بعد وقد قال الله تعالى وتبارك في كتابه الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات وأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 7 اسی کی روشنی میں قرآن و اہل بیت کے عنوان سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. جو راستے میں آ رہا گاڑی سے اترا برادر عبداللہ جی صاحب نے حکم دے دیا کہ مصائب تو ہیں اللہ کے پاس کے فضائل بھی انہیں کے پڑھیں. میں کوشش کروں گا ایک بٹا صلوات پر محمد والے کل میں نے سرکار سید الشہداء کا ایک قول پیش کیا تھا قرآن کے حوالے سے. امام فرماتے ہیں کہ قرآن میں 4 چیزیں ہیں. عبارت ہے، اشارہ ہے، لطائف ہے اور لطائف. عبارت عوام کے لیے ہے والاشارہ للخواص، قرآن کا اشارہ خواص کے لیے ہے. واللطائف للاولیاء، باریکیاں قرآن کی اولیاء کے لیے اور حقائق للانبیاء، اور حقائق انبیاء کے لیے. تو اسی طریقے سے اہل بیت، قرآن اہل بیت ساتھ ساتھ ہے، فضیلتوں میں بھی ساتھ ساتھ ہیں. جس طرح تو قرآن کا ظاہر ہے کتابوں جیسا وہی حروف ہے جو عام کتابوں میں پائے جاتے ہیں، وہی حروف قرآن میں بھی سی جاتے ہیں. لیکن ان حروف کے درمیان جب خدا بند عالم ترتیب دیتا ہے تو وہی معجزہ بن جاتے ہیں. اہل بیت کے بھی ظاہر وہی ہے. عام جیسا جیسے عام انسان ہے اس کی 2 آنکھیں، اس کی بھی 2 آنکھیں، لیکن یہ ظاہر بھی عام لوگوں سے بہت مختلف ہے. تو ظاہر وہی لیکن بھی مختلف ہے. اب بہت سے واقعات ہیں، سب کو نظر انداز کرتے ہوئے ایک کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں. ام المومنین فرماتی ہیں کہ جو عرق نکلتا تھا یعنی پسینہ، جس میں اقدس سے سرکار کے جسم سے جو پسینہ نکلتا تھا ہم اسے شیشے میں بند کر دیتے تھے. اس پسینے کو اور جب کسی کی شادی ہوتی تھی تو دلہن کو لگاتے تھے. خوشبو عنبر سے زیادہ خوشبو آتی تھی. اس کو علماء اہل سنت نے نقل کیا. تو بس کہتے ہیں یہ بھی اہل بیت میں سے ہیں. لوگ سوال کرتے ہیں کہ امت و اہل بیت میں کیا فرق ہے، ان میں اہل بیت میں کیا فرق ہے؟ بھائی وہی فرق ہے جو فرق خون و پسینے میں ہے. ان کے حصے میں پسینہ آیا. اہل بیت کے لیے کیا کہا؟ لحمہم لحمی دمہم دمی. تمہارا گوشت میرا گوشت، تمہارا خون میرا خون. صلوات پر محمد والے. ایک تو میں گزارش کروں پھر اس کے بعد مطالب بھی ذہن میں آتے چلے جا رہے ہیں. انشاءاللہ میں غازی عباس کے فضائل درس کروں گا. صلوات پر محمد والے. اب دور یہ ہے، زمانہ یہ ہے کہ جتنے چینل ہیں تو آپ دیکھتے ہی رہتے ہوں گے. ہر چینل پہ ہر آدمی بیٹھا ہوا اپنی بات کہہ رہا ہے. ہمارے مومنین خاص کر بچے جب سنتے ہیں تو سوال بھی کرتے ہیں وہاں پر. ایک بات تو یہ تبرک کے حوالے سے
देखिए तबर्रा क्या है, खुदा और रसूल और आइम्मा के दुश्मनों से इजहार पेशानी करना। ये एक ऐसी हकीकत है जिसका इनकार कोई कर ही नहीं सकता। इसमें तो अख्तलाफ ही नहीं है, ये जुज़ ईमान में से है। इख्तलाफ है कैफियत तबर्रा में, कैसे तबर्रा भेजा जाए, इसमें इख्तलाफ है। तो इसके लिए एक बात हमें गुजारिश करनी है आप हज़रात के सामने, और वो कि दुश्मनान अहले बैत इनकी दो किस्में हैं। एक वो जिन पर हम नाम लेकर लानत भेज सकते हैं, उसमें सर शामिल यजीद बिन मुआविया। अब इसके लिए थोड़ी हमें कोई तक़िया करना है, या इसका बाप मुआविया, इनके ऊपर हम भेज सकते, कोई वो नहीं। लेकिन कुछ दुश्मन ऐसे हैं जिनके ऊपर जबरदस्त नकाब पड़ी हुई है, उसके लिए तो हमें वही रास्ता अख्तियार करना जिस रास्ते पर हमारे आइम्मा चले हैं। मामला तो पुराना कोई आज का थोड़ी है। पता छठे इमाम से किसी ने पूछा, शेखैन के बारे में आपको क्या ख्याल है? एक जुमला का मुख्तसर जुमला, समझने वाला समझ जाए। कामा अलल हक व माता अलैह, कामा दोनों खड़े हुए अलल हक, एक मर्तबा अरबी जबान है, हक अलल हक लिल हक कहा जाता है। अदू अलैका अदू लका, जब लाम के साथ अदू लका यानी हम आपके लिए दुआ कर रहे हैं, और जब का अदू अलैक आइन के साथ हो, अला के साथ हो, यानी बद्दुआ कर रहे हैं, माने बिल्कुल उल्टे हो जाएंगे। कामा लिल हक, हक के लिए खड़े हुए, हक के दफा के लिए। कामा अलल हक, हक पर खड़े हुए, तो जिस हक पर खड़े हुए उसी हक पर मर गए, यानी तौबा नहीं की। इसके ये मान सामने वालों की इस तरीके से आइम्मा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया है। और दूसरी बात ये है कि ज़ाहिर मोहतरम आज हम यहाँ पे आज़ाद हैं, कैसे करें, क्योंकि ज़माना है खास, अपनी महफिल हो तो कोई बात नहीं, अपनी जगह हो तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर इंटरनेट के ऊपर, टीवी के ऊपर आ रहा है, अभी यहाँ ऊपर कुछ हुआ था या कोई चैनल हुआ था, उसमें कुछ हुआ था, तो जब हज करने के लिए लोग मदीने में गए तो वहाँ बाकायदा मदीने के शियों ने शिकायत की उलमा से, इन बेवकूफ़ों को आप रोकें, इनके लिए हमारे इतनी मुश्किल आ रही है कि हमारे बच्चे जब मदरसे जाते हैं तो उनको मारा जाता है, और कुरान उनके हाथ में दिया जाता है कि कसम खाओ कुरान की कि तुम फला 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 से मोहब्बत करते हो। अगर हम कहाँ, हर जगह तो हैं, लेकिन हर जगह तो आज़ादी नहीं है। तो अगर हमारी वजह से हमारे किसी भाई के ऊपर मुसीबत आ रही तो जिम्मेदारी है, तो इसको हमें मद्देनजर रखना। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इत्तेहाद है बैन, इत्तेहाद बैन मुस्लिमीन बहुत अच्छी बात है, लेकिन जैसा कि उलमा कहते हैं कि इत्तेहाद बैन मुस्लिमीन का ये मकसद नहीं कि हम अपना अकीदा बदल दें, हमारे लिए हमारा दिन, उनके लिए अपना, उनका दिन वो जाने, उनका काम जाने, हमें खुद खबर में जवाब देना, वो देंगे जवाब। लेकिन वदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसना, कुरान क्या कह रहा है? अल्लाह के रास्ते की तरफ। अब हमें बताने की जरूरत है कि सबील किसे कहते हैं। गुज़िश्ता मजालिस में वाज़ेह हो चुका, सबील की तरफ बिल हिकमा, हिकमत और अच्छी बातों से, गाली से नहीं। जंग सिफ़ीन में किसी ने मुआविया को गाली दे दी, इमाम अली का गाली दे दी, अब जो भी गाली दी माँ की बहन, मुझे नहीं पता, लफ्ज़ आया रवायत में, सब गाली दी उसे। तो मौला ने बुलाया उसे, कहा देखो मैं नहीं चाहता कि मेरा चाहने वाला अपनी ज़बान पर गाली लाए, उस पर लान करो, बुरा करो, ये लानत गाली नहीं है, तो बुरा कहो उससे, लेकिन गाली ना बको। मैं नहीं कि मेरा चाहने वाला साफ यानी गाली बकने वाला। बहरहाल टीवी में एक मरतबा कोई साहब बड़ी तकरीर कर रहे थे, और इंशाअल्लाह अगर वक्त रहा तो कभी मौका मिला तो मैं अर्ज़ करूँ, कल परसों शायद, आज तो मुझे बात के फज़ाइल अर्ज़ करने हैं, बात तो सिर्फ इस वजह से कि मतालिब में आ जाए। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपको पता है कि इशारे में सारी गुफ्तगू हो जाती है, कहते हैं इशारा जो है तस्रीह से बेहतर है, कौन कहाँ दफन है आपको बताने की जरूरत तो नहीं। बड़े जोश और खरोश से वही पढ़ रहे थे, पहुंची वहीं पे खाक जहाँ का खमीर था, बार बार इसे रिपीट कर रहे, पहुंची वहीं पे खाक जहाँ का। अब इसका बजाय के बाद लोग सुनेंगे तो भाई उसका जवाब भी चाहेंगे, जवाब भी है। देखिए इस्लाम में, कुरान ने नजात का जरिया किसे बताया? कुरान ने किसे बताया नजात का जरिया? अगर कुरान ठीक से मुसलमान समझ ले तो उसकी समझ में पूरा दीन आ जाएगा, और ये मसाइल खुद बखुद हो जाएंगे। अब तफसील में नहीं जाना है। तूफान आता है जनाब नूह के ज़माने में, ऊपर से बारिश होती है आसमान से, और नीचे ज़मीन से भी पानी निकलता है। तूफान आए, जनाब नूह ने कश्ती बनाई और सवार हो गए।
80 आदमी उस पर सवार हो गए, 80 आदमी, कश्ती चली, सबको नजात मिल गई। कुरान क्या कह रहा है, क्या अल्फाज कुरान ने इस्तेमाल? कुरान ने कहा फ़अंजयना हो, हमने नजात दी नूह को। अगर कुरान कहता असहाबहू कि हमने नूह और उनके असहाब को नजात दी, तो हम समझ लेते हैं कि नबी का जो भी सहाबी सबको नजात मिल जाएगी। हमने नूह को नजात दी और जो असहाब है उनको नजात दी, तो हम मान लेते हैं, यकीन करते हैं भाई, हम अकीदा अपने घर में थोड़ी करते हैं, जो कुरान ने कहा वही हमारा अकीदा है, जो नबी ने बयान किया वही हमारा अकीदा है। कुरान क्या कह रहा है? कुरान ने सिर्फ इतने को पर इत्तिफाक नहीं की फ़अंजयना व असहाब, कुरान कह रहा है फ़अंजयनाहु व असहाब सफीना, फ़अंजयनाहु व असहाब सफीना, हमने नूह को नजात दी और असहाब सफीना को, अरे जो सफीने पे सवार थे उन्हें सब नजात दी, असहाब को नहीं, असहाब सफीना को, असहाब सफीना को नजात दी। अब मुत्तफ़क़ अलैह हदीस है, सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद कभी अलम कभी हैदर को जुल्फ़कार मिली, कभी अलम कभी हैदर को जुल्फ़कार मिली, जो शाय अली को मिली रब से शानदार मिली, माशाअल्लाह, जो बद नसब थे पैगंबर के साथ रह कर भी खुदा की कसम उनको फकत जुर्रते फरार मिली। कुरान ने नजात क्या बयान पेश किया? फ़अंजयनाहु व असहाबहू नहीं कहा कि हमने नूह को नजात दी और सामने फ़अंजयनाहु व असहाब सफीना, हमने नूह को नजात दी और असहाब सफीना को। नजात नबी के सहाबी को नहीं मिलती है, नजात नबी के सहाबी को नहीं मिलती, नजात सफीने के सहाबी को मिलती है। मुत्तफ़क़ अलैह हदीस है, शिया सुन्नी सब ने नकल किया, पैगंबर ने फरमाया मसलो अहले बैती का सफीनतिन नूह, मेरे अहले बैत की मिसल सफे जो आ गए। आप देखें नजात किसे मिले? सफीने जो बैठ गया सफीने पर। अब 80 आदमी के अलावा जानवर भी तो थे सफीने में, क्या जानवर नहीं थे? हैवानात थे, चिड़िया थी, चिड्डे थे, न जाने क्या क्या था, लेकिन सबको नजात मिल गई। सफीने पर जो आ जाए उससे नजात मिल जाए। बेटा डूबता रहा, नूह दुआ करते रहे, कुरान कहता रहा लैसा मिन अहलिक, तुम्हारे अहल से नहीं है, बीवी भी डूब गई, बेटा भी डूब गया, नजात नहीं मिली। नजात जानवरों को मिल गई जो सफीने पर थे। अहले बैत नजात का ऐसा सफीना जो भी आ जाए उसे नजात मिलेगी। लेकिन सफीने पे अगर कोई आ गया तो आने क्या मतलब? सफीना तो खुद ही चलता है, सफीने पे आकर फिर नहीं चला जाता। कोई अगर सफीने पे आए और आने के बाद खुद दौड़ने लगे और कहे मुझे बहुत ही जल्दी है, तो आपका दिमाग खराब हो गया। दौड़ने से तुम जल्दी मंजिल पे नहीं पहुंचोगे, तुम बैठ जाओ, सफीना खुद ब खुद मंजिल तक पहुंचा देगा। ये चला जा रहा, पहले बैत के साथ आ जाओ, जिधर जिधर ये जाए उधर उधर चले जाओ, तुम्हें नजात मिल जाएगी। सल्लल्लाहु अलैहि मौजूद की तरफ से आऊं, जिनका जिक्र सुनने के लिए आया फज़ाइल क्या? फज़ाइल अबुल फज़ल अब्बास, लफ्ज़ अबुल फज़ल ये नहीं मिलेगा, जो कुन्नियत है। और माँ कहते हैं अल-अस्मा तुनज़लु मिनस समा, नाम भी आसमान से नाजिल होते हैं, अलग मौजू है। फज़ाइल हज़रत अबुल फज़ल अब्बास अलैहिस्सलाम सूरह हम्द की रोशनी में। हो सकता है कोई कहे कि भाई कैसे हो सकता है कि सूरह हम्द में इनके फज़ाइल हो? क्यों? तो हम तो पहले नाजिल हुआ, इनकी विलादत बाद में हुई। तो उस पर इमाम क्या कहते हैं? इमाम फरमाते हैं लौ अन्नल आया नज़लत फी कौम, अगर कोई आयत किसी कौम के बारे में नाजिल हो और वो कौम मर जाए, उसके मरने से आयत भी मर जाए, तो कुरान में कुछ नहीं बचेगा। कुरान किसी शख्स से बहस नहीं करता, कुरान किरदार से बहस करता है। कुरान शख्स नहीं, कुरान किरदार बुरा है उसका भी जिक्र करेगा, किरदार अच्छा है उसका भी जिक्र करेगा। सूरह हम ने क्या पढ़ते हैं? इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम,
सीधे रास्ता मुझे दिखा, जैसा तर्जुमा है, या सीधे रास्ते पर मुझे कायम रख। ऐसा रास्ता, ऐसे लोगों का रास्ता अनअमता अलैहिम, जिन पर तूने अपनी नेमतें तमाम की। अब आइए तलाश करें किन पर नेमतें तमाम हुई। नेमतें तो किन पर नेमतें तमाम हुई। पैगंबर के एक गुलाम थे जनाब सोबान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, और इतना पैगंबर से ये मोहब्बत करते थे, आज़ाद कर दिया था पैगंबर ने जनाब सोबान को, आज़ाद कर दिया था। फिर इतना मोहब्बत करते थे, इतना इश्क था कि अगर 2-4 दिन नहीं देखते थे तो परेशान हो जाते थे। एक दिन पैगंबर के पास आए तो इनके चेहरे का रंग जर्द था और अजब तरह की हालत थी। कहा सोबान क्या हुआ, तुम बीमार हो, मरीज है? या रसूलल्लाह बीमार हो, तुम्हारा हालत क्या हो गई? कहा या रसूलल्लाह मैं अपने घर में था, सोच रहा था कि अगर मैं चंद दिन आपको न देखूं, ये इश्क रसूल, हकीकी इश्क रसूल है, अगर चंद रोज आपको मैं न देखूं तो तड़प जाता हूँ, बेचैन हो जाता हूँ, भागा चला आता हूँ। मैं सोच रहा था कि अगर खुदा ने जन्नत में हमें उस जगह रखा जहां आप ना हो, आपका दर्जा तो बहुत बुलंद है। देखिए ये है मारिफत। आज का मुसलमान जन्नत के पीछे जा रहा है, रसूलुल्लाह छूट जाए जन्नत तो मिल जाए, जन्नत ही। या खुदा ने मुझे ऐसी जन्नत में रखा जहां पर आप ना हो और आपका दीदार ना हो, आपकी ज़ियारत ना हो, तो मैं क्या करूंगा? अब पैगंबर क्या कहे? पैगंबर कहे, खामोश पैगंबर। जनाब जिब्रील ये आयत लेकर नाज़िल हुए, सूरह निसा की आयत, मन युती अल्लाह व रसूल, जो अल्लाह और रसूल की इताअत करेगा, फ़उलाइका मअल्लज़ीना अनअम अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदा वस्सालिहीन व हसन उलाइका। जो अल्लाह और रसूल के इताअत करेगा वो अंबिया के साथ, सादिकीन के साथ, शुहदा के साथ, सालिहीन के साथ होगा जन्नत में। व हसन उलाइका रफीका, और कितने अच्छे ये साथी हैं, जिनके साथी अंबिया हों उससे बढ़ के तो कुछ नहीं। ये आयत नाज़िल हुई, खुश हो गए। तो पैगंबर ने फरमाया समानिया खिसालिन, 8 काम हमारी उम्मत से जो लोग जो भी करेगा वो यहशरुल्लाह, अल्लाह उसे महशूर करेगा। 8 काम कोई करे अल्लाह उसे महशूर करेगा, किसके साथ? मान नबीयीन व सिद्दीकीन व शुहदा व सालिहीन। 8। अब आप देखिए फज़ाइल हज़रत अबुल फज़ल अब्बास सूरह हमद की रोशनी में, अनअमता अलैहिम, उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने अपनी नेमतें तमाम की। आयत क्या कह रही है? मन युतीउल्लाह व रसूल फ़उलाइका मअल्लज़ीना अनअम अल्लाहु अलैहिम, उन लोगों के साथ होंगे जिन पर अल्लाह ने अपनी नेमतें तमाम की हैं। कौन है जिन पर अल्लाह ने नेमतें तमाम की हैं? वो अंबिया हैं, सिद्दीकीन है, शुहदा है और सालिहीन। अब इनके साथ जो मिलना चाहे वो 8 काम करे। 8 काम अगर किया, 8 में से अगर एक भी कर लिया तब भी मुलाक हो जाएगा। अगर 8 काम कर लिए तो कैसे कहेंगे नूरुन अला नूर। वो 8 काम क्या? सबसे पूछा पैगंबर से, क़ीला या रसूलल्लाह मा हिया, ये क्या? पैगंबर ने फरमाया नंबर 1 मन ज़व्वदा हाजन, जो किसी हाजी के लिए ज़ात राह फराहम करे, किसी हाजी के लिए ज़ात राह फराहम करे। अल्लाह के घर की तरफ कोई जा रहा है हज करने के लिए, आपने उसकी मदद कर दी, पासपोर्ट बनवाने में दिक्कत थी, मदद कर दी। हज करना नहीं, हज करना तो बहुत दर्जा, हाजी की मदद करना। आम हाजी की अगर मदद करे तो कहाँ मुसलमान पहुंच जाए, अगर हाजी फर्जंदे रसूल हो, अगर हाजी फर्जंदे रसूल हो, एक ने 25 हज इमाम हुसैन ने किए, तो उसका मतलब मन ज़व्वदा हाजन, जिसने भी हाजी जल्दी जल्दी। उसके बाद पैगंबर से पूछा गया दूसरी क्या सिफत, तो पैगंबर फरमाते हैं मन अहदा ज़ालन, किसी गुमराह को कोई हिदायत, किसी गुमराह को अगर कोई हिदायत दे दे तो उसका हश्र किसके साथ होगा, किसके साथ मशहूर होगा? अंबिया के साथ होगा। एक आदमी को हिदायत अगर कोई दे दे तो अंबिया के साथ मशहूर हो, जिसने अपने खून से हिदायत का रास्ता बना दिया हो, रास्ता बना दिया हो, तो वो किस मंजिल के ऊपर होगा, वो किस जगह के ऊपर होगा? मन रब्बा यतीमान, जिसने किसी यतीम की तरबियत की हो, किसी यतीम को पाला हो, किसी यतीम की हिफाजत की हो। ये पैगंबर कह रहे हैं, एक यतीम का पालने वाला, इतना दर्जा कि जन्नत में अंबिया के साथ पहुंच जाए। मुसलमानों थोड़ा गौर कर लो, जो एक यतीम की तरबियत करे वो जन्नत में अंबिया के साथ चला जाए, और जिसने यतीम अब्दुल्ला को पाला हो
نے یتیم عبداللہ کو پالا ہو، اس کا درجہ کتنا بلند ہوگا۔ اس کے بعد پیغمبر نے فرمایا من اطعم جائعا، جس نے کسی بھوکے کو کھانا کھلایا، ایک بھوکے کو جو کھانا کھلائے تو وہ انبیاء کے ساتھ۔ اور ہمارے بنی ہاشم کے لیے کیا ملتا ہے؟ خدا کی قسم، پانی کا انتظام کیا تو کیا کھانے کا انتظام نہیں کیا؟ اور آگے کا جو جملہ من اروى عطشان، کسی پیاسے کو پانی پلائے، کسی پیاسے کو پانی پلائے، ایک پیاسے کو کوئی پانی پلا دے، ایک پیاسے کو، ایک بھوکے کو کوئی کھانا کھلائے۔ انسان کی بات آپ جاننے دیں، اگر جانور پر رحم کرے، بہت سے واقعات ہیں، صرف ایک واقعہ ہلکا سا اشارہ کہ ایک صاحب جا رہے تھے، دیکھا کہ خشکی کا زمانہ ہے، یعنی پانی نہیں گر رہا، خشک سالی ہے، دیکھا وہ تڑپ رہی ہے، بھوکی پیاسی کچھ آئے، بچے ہیں اس کے، وہ بھی بھوک سے مر رہے ہیں، ترس آیا، گئے، جانے کے بعد کنویں سے کسی طریقے سے پانی نکالا، اس کے آگے رکھ دیا، اس نے پانی پیا، پھر گئے ایک روٹی لے کے آئے دکاندار کے پاس، روٹی اس کے آگے لا کے ڈال دی، پھر اس کے بعد دکاندار کو کچھ پیسے دیا، کہا تو جب تک یہ چلنے پھرنے نہ رکھے ایک روٹی اس کو ڈال دینا اس کے آگے۔ ایک جانور پر رحم کیا، اس کے نتیجے اس کی موت ہونے والی تھی، خدا نے اس کی موت کو ٹال دیا اس صدقے سے۔ تو جو حیوان پر رحم کرے، اب کوئی انسان پہ رحم کرے۔ من اروى عطشانا، پیاسے کو پانی پلانا، ارے جس نے اہل بیت کے لیے پانی کا انتظام کیا ہو، پانی لانے کی کوشش کی، کون مرتبے تک پہنچ سکتا ہے؟ من اروى من اغاث ملحوفا، ایک شخص مصیبت میں ہے، پریشانی میں، اگر کسی نے اس کی مدد کر دی، اگر کسی نے اس کی مدد کر دی، ملحوف کی، مشکلوں میں جو گرفتار ہے، اگر اس کی مدد کر دی، تو قرآن کہہ رہا، پیغمبر کہہ رہے کہ انبیاء کے ساتھ ہوگا۔ اور اگر مصیبت میں گرفتار ہونے والا فرزند زہرا ہو، وہ ہو ساقی کوثر کا، اس کی مدد، من اغاث ملحوفا، ایک مصیبت زدہ کی مدد کرنا اتنا ثواب، اور جس نے فرزند زہرا کی مدد کی کہ جب تک عباس زندہ رہے حسین مطمئن رہے، جب تک ہمارے بنی ہاشم زندہ رہے امام حسین مطمئن رہے۔ تو یہ صفات جس میں، 8 صفات جس میں جمع ہو جائیں، وہ 8 میں سے ایک بھی اگر کسی میں آ جائے تو انبیاء جنت میں کس کے ساتھ رہے گا؟ انبیاء کے ساتھ۔ جنت میں کس کے ساتھ رہے گا؟ صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، صالحین کے ساتھ جنت میں رہے گا۔ اور آیت یہیں پر ختم نہیں ہوتی، توجہ چاہ رہا ہوں، یہ 8 کی 8 صفات کامل طریقے سے قمر بنی ہاشم میں پائی جا رہی ہیں، ایسی کسی میں جمع نہیں ہوئی جیسی حضرت عباس میں جمع ہو گئی۔ اور جب 8 صفات جمع ہو گئی، اس کے بعد قرآن کیا کہتا ہے؟ ذالک الفضل من اللہ، ذالک الفضل، یہ فضل ہے اللہ کی طرف۔ توجہ، اگر ان فضیلتوں کے مالک نہ ہوتے تو ابو الفضل کیسے کہلاتے؟ یہ فضائل ہیں، اسی وجہ سے یہ ابو الفضل کہلاتے ہیں۔ صلوات محمد و آل محمد۔ تو انعمت علیہم، جن پر تو نے نعمت، جن پر نعمتیں تمام کی، یہی لوگ ہیں جن پر نعمتیں تمام ہوئی، انہی کے راستے پر چلنے سے ہدایت ملے گی، انہی کے راستے پر چلنے سے نجات ملے گی، اس کے علاوہ نہیں۔ آیت میں آیا ہے، لفظ صالحین آیا ہے، یعنی کس کے ساتھ ہوگا؟ لفظ صالح کسے کہتے ہیں؟ صالحین جمع ہے صالح، صالح کہتے ہیں نیک کو، نیکی کرنے والے کو صالح کہتے ہیں۔ آج جو نمازی نماز میں سلام کرتا ہے، اس کا سلام بھی قمر بنی ہاشم تک پہنچتا ہے، اس کا سلام کیوں، کیسے پہنچتا ہے؟ نماز میں سلام کیسے؟ ایک عام شخص نہیں کہہ رہا ہے، امام معصوم کہہ رہا ہے السلام علیکہ ایھا العبد الصالح۔ امام معصوم کی زیارت کے جملے، اے عبد صالح آپ پر سلام ہو۔ امام معصوم جب قمر بنی ہاشم زیارت پڑھنے، لفظ عبد الصالح، السلام علیکہ یا عبد الصالح، اے عبد صالح آپ پر ہمارا سلام ہو۔ اور ہم نماز میں سلام پڑھتے ہیں کیا؟ السلام علینا، ہم پر سلام، والا عباد اللہ الصالحین، اللہ کے صالحین بندوں پر۔ تو صالح کی بہترین مصداق قمر بنی ہاشم ہے، زمانے کی قید نہیں ہے، جتنے بھی صالحین ہیں ان سب کے اوپر نمازی کا سلام۔ حضرت عباس سے پڑھ کر کیا مرتبہ دنیا پہچان نہ سکے قمر بنی ہاشم کے مرتبے کو۔ ایک شخص آتا ہے، غالباً نام میرے ذہن میں نہیں، لیکن یہ خصوصیت ہے معصومین کی، علماء کہتے ہیں کہ اگر تمہیں یہ یقین ہو کہ یہ حدیث معصوم کی ہے اور یہ تم بھول جاؤ کس کی ہے، تو جس کا چاہو اس کا نام لے لو، سب کا کردار ہے۔ تو غالباً 9 امام کا یہ واقعہ ہے۔ صلوات محمد و آل محمد۔ امام کے پاس اور کہنے لگے
कि अपना रसूलुल्लाह ये बताइए कमर बनी हाशिम के पास कितना इल्म था? इल्म से सवाल। कमर बनी हाशिम के पास इल्म था तो कितना इल्म था? इमाम कुछ नहीं बोले और उधर से कुछ जानवर निकले घर में जो थे, तो इमाम ने उससे कुछ गुफ्तगू करना शुरू की, जानवरों से बोलने लगे। उसने कहा ये अपना रसूलुल्लाह क्या आप इन हैवानात की ज़बान समझते हैं? इमाम ने कहा क्या तुम भी समझना चाहते हो? तो कहता क्या ये मुमकिन है कि हम इन जानवरों की समझ लें? कहा मुमकिन है। इमाम ने कहा कि एक कंकड़ी उठाई, उसको अपने मुंह में रखी और उसके बाद निकाल के उसी के मुंह में डाल दी, और जैसी कंकड़ी उसके मुंह में पहुंची वो जानवरों की ज़बान समझने लगा। ये भी बोलते हैं, ये भी तस्वीर करते हैं। तो कहा तुझे तेरे सवाल का जवाब मिल गया। सवाल क्या था? कमर बनी हाशिम के पास इल्म कितना था? मुझे मेरे सवाल, जब मेरे लुआब तहन में इतनी तासीर है तो कमर बनी हाशिम ने बाब मदीनतुल इल्म का लुआब तहन कहाँ तक कौन पहुंचेगा, किस तरीके से? बस जो मैं समेटूं, दवाने वक्त गुंजाइश नहीं है, आप भी थके हुए हैं। परवरदिगार आपकी खिदमत को कबूल कराए। यही हमारे लिए सरमाए नजात होगा। पूरी तारीख में हमें सिर्फ 3 भाई मिलते हैं, इसके अलावा नहीं। पूरी तारीख में सिर्फ 3 भाई मिलते हैं। जब जनाब मूसा ने कहा था रब्ब इश्रह ली सदरी यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, परवरदिगार मेरी ज़बान खोल दे। वजअल ली वज़ीरन मिन अहली हारून अख़ी, खुदाया मेरे भाई हारून को मेरा वजीर बना दे। एक हारून है जो मूसा के भाई थे, एक हारून मूसा के भाई, खुदा से मांगा था मूसा ने। और एक अली रसूल के भाई। अमा तर्ज़ान तकून मिन्नी बे मंज़िलत हारून मिन मूसा इल्ला नूर ला नबी अबादी। अली तुम मेरे लिए वैसे ही हो जैसे मूसा के लिए हारून थे। हारून जब तक मिल नहीं गए, मूसा ने अपने काम की इब्तिदा नहीं की, तबलीग की। फिरौन के पास नहीं गए जब तक हारून नहीं आ गए, और जब तक काबे में रसूल को अली नहीं मिल गए, रसूल ने इब्तिदा नहीं की। तो मुझे कहने दीजिए, हारून नाम है जरूरत मूसा का, अली नाम है जरूरत मुस्तफा का, और अब्बास नाम है जरूरत हुसैन इब्न अली का। जुबान के साथ दिल बोला अली मौला, अली मौला। जुबान के साथ दिल बोला अली मौला, अली मौला। हमारे बने हाशिम का मर्तबा क्या? एक बहुत बड़े आरिफ गुजरे हैं, उनका एक कौल मेरे ज़हन में भी आया। वो कहते हैं कि जब मेरे सामने से हिजाब उठे, पर्दे पड़े ना, तो मेरे सामने से जब हिजाब उठे तो मुझे मालूम हुआ कि इस कायनात हस्ती में, इस मौजूदा कायनात हस्ती में खुदा तक पहुँचने का बाप सबसे आसान हुसैन इब्न अली। खुदा तक पहुँचने का दरवाज़ा सबसे आसान हुसैन इब्न अली, और हुसैन तक पहुँचने का दरवाज़ा कमर बनी हाशिम। इतना चाहते हैं ये मोहब्बत एक तरफा, तो आप इतने 11 बजे रात में आके जिक्र सुन रहे हैं, इतनी मोहब्बत करते हैं। मैं बताऊँ आपसे, खुद जिन आलिम के साथ जो वाक़या हुआ है, उन्होंने पढ़ा ईरान टेलीविज़न के ऊपर, टीवी पर ये वाक़या है, टीवी। एक खातून मशहूर हो गई करबला में इस्तिखारे के हवाले से। उलमा कुरान से इस्तिखारा देखते हैं और रिवायत निकलती तो बता देते हैं कि नियत क्या है। कुछ लोग, सब नहीं, कुछ लोग तिजारत करो फ़ायदा होगा, शादी ना करो मसला। वो तस्बीह से इस्तिखारा देखती है और नियत बता देगी कि तुमने इस काम के लिए इस्तिखारा किया, ये अच्छा है या ये खराब। तो जब वो गए, उनका मुझे बड़ी हैरत हुई कि तस्बीह से कैसे ये बता देती है। कब मैं उसके घर में पहुँचा, घर पहुंचा, किसी से मुलाकात की, उसके बाद मैं कहा माजरा किया, इसरार किया। तो उसने बताया, मैंने कहा बात सिर्फ इतनी है कि मैं जवान थी, मेरा शौहर मर गया, मेरे जो बच्चे थे, कोई मेरी मदद करने वाला नहीं, कोई मेरी नुसरत करने वाला नहीं था, और जो भी मदद करना चाहता था वो सही नियत से मदद नहीं करना चाहता था। मैं परेशान कि बच्चों को कैसे पालूं। मेरे ससुराल वालों ने मुझे घर से निकाल दिया, मेरा ना बाप ना भाई, क्या करती। तो मैं आई कमर बनी हाशिम के अंदर नहीं गया। मैंने कहा या बन फल, ये अरब लोग जब आते हैं कमर बनी हाशिम के रोज़े में, एक जुमला कहते हैं, किसी इमाम के रोज़े में आते हैं, अना दखीला, यानी मैं तुम्हारी पनाह में आ गया। वहीं दस्तक करूँ, बोला मैं बहुत परेशान, मैं क्या करूँ, क्योंकि मैं अंदर नहीं आऊँगी, आप मेरी मदद करें। ये कहीं चली गई। रात में उसका ख्वाब में देखा कमर बनी हाशिम आए और कह रहे मोमना, मैंने तुझे मायूस तो नहीं किया, मेरे रोज़े में भी नहीं है, दरवाजे से वापस चली गई, जाओ एक तस्वीर ले लो और तुम इस्तिखारा देखो। एक औरत तुम्हारे पास सुबह आएगी, तुम उसका इस्तिखारा देखना, उसके एवज़ में तुम्हें हदिया मिलेगा। तो कहा हम चाहिए, हम क्या इस्तिखारा देखेंगे।
کہا تم استخارہ دیکھنا، تمہارے کان میں آگے ہم کہیں گے، تمہارے کان میں آ کر ہم کہیں گے. جب کوئی بھی آتا ہمارے پاس استخارہ دیکھنے کے لیے، ہم تسبیح کے دانے گھماتے ہیں، کوئی کان میں آواز آتی ہے، یہ کہتے ہیں. خدا کی قسم اتنی محبت، اتنا کرم. بس میرے دوست نے واقعہ ہمیں سنایا تھا انڈیا میں، بہار سے ان کا تعلق تھا. کیسے کیسے واقعات ہو جاتے ہیں جو لوگوں تک نہیں پہنچ پاتے، لیکن کچھ واقعات پہنچ جاتے ہیں. ان ممبر سے پڑھا تھا، میں خود اس مجلس میں تھا. بہار کا واقعہ، گاؤں گاؤں میں مجلسیں ہوتی ہیں. ہندوستان میں ایسا ہے کہ ایک گاؤں میں 10 شیعہ، 4 شیعہ، 5 شیعہ، لیکن جہاں بھی ہیں حسین کی سفیدہ تو اچھے گی. ایک گاؤں میں صرف ایک عورت تھی اور وہ عزاداری کرتی تھی. 8 محرم کو حضرت عباس کا چھوٹا سا عالم سجاتی تھی. غریب عورت، پیسہ نہیں، اور شربت کے اوپر نظر دلاتی تھی. ہوتا تھا پاس والے گاؤں سے کچھ لوگ آتے تھے، یہاں ماتم کرتے تھے، نظر دیتے تھے، چلے جاتے تھے. کچھ بات ہو گئی، 1 سال نہیں آیا. پہلی محرم ہوا، دوسری محرم ہوا، کوئی نہیں آیا. جب 8 محرم ہوئی تو اس نے علم تو سجا لیا لیکن بہت روئی. آقا شاید مجھ سے ناراض ہو، مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی، اب کوئی عزادار ہمارے یہاں نہیں آیا. 8ویں محرم آئی، علم سجائے بیٹھی ہے، رو رہی ہے، گریہ کر رہی ہے. ادھر آگاہ دیکھا گھوڑوں ٹاپوں کی آواز کر رہی ہے. دیکھا ایک سوار کھڑا ہوا، خوش ہو گئی. تم کون ہو؟ کہا شربت لا، میں پاس نظر دیتی ہوں. شربت تیار ہے. میں اس ضعیفہ نے، اس بوڑھی عورت نے گلاس آگے رکھا، اس نے نظر دی. کہا نظر ہو گئی، میں جا رہا ہوں. بس ایسی یہ کہہ کے جانے لگا، اس بوڑھی عورت کے منہ سے چیخ نکل گئی. کہا کیوں رو رہے؟ کہا آج مجھے یقین ہو گیا اب تو کہ میرا مولا مجھ سے واقع ناراض ہے. نہ جانے کیا بتاؤ. کہا کیوں؟ کہا میری نظر نہیں قبول ہوئی. کہا کیسے نظر قبول ہوتی ہے؟ کہا نظر دینے والے اس سے پہلے جو بھی آتا تھا نظر دینے کے لیے پہلے اپنے ہاتھوں کو بلند کرتا تھا. جو بھی آتا تھا پہلے اپنے ہاتھوں کو بلند کرتا تھا، پھر نظر دیتا تھا. انہیں ہاتھوں کو تو بلند نہ کیا، ایسے ہی نظر دے دی. بتانے والے نے کہا اے ضعیفہ، اے عباس کا علم سجانے والی، جس کی نظر دے رہی میں وہی عباس. خان تمہیں پیاسی سکینہ کی پیاس پر قربان کر چکا. آج حکم اللہ خدا کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم ماہ مظلوم کربلا کے. کٹے ہوئے ہاتھ روایت میں آیا ہے جب روز محشر ہوگا تمام خلائق جمع ہوں گے، جب مرتبہ آواز آئے گی محشر والوں اپنی آنکھیں بند کر لو. سیدہ کی سواری آئے گی، تمام آنکھیں جھکی رہیں گی اور پر عرش کا پایا پکڑ کر سیدہ فریاد کریں گی. رسول کہیں گے علی سیدہ سے جا کر کہو اس امت کی شفاعت کا کوئی انتظام. علی آئیں گے محمل کے پاس، کہیں گے کیا جملہ سیدہ فرمائیں گی علی کفانی لأجل هذا المقام الیدان مقطوعان لابن العباس. علی آج شفاعت کے لیے تو میرے بیٹے عباس کے کٹے ہوئے ہاتھ کافی. آج کمر اللہ بس چند جملے شہادت کے 10ویں محرم کا بھائی حسین سب کو اجازت دے رہے ہیں لیکن عباس کو نہیں. بھیا میں تمہیں کیسے اجازت دوں؟ تمہیں کیسے اجازت دوں؟ تم تو میرے فوج کے علمدار ہو، تمہیں کیسے؟ اور آخر میں جب کوئی نہیں رہا عباس حسین کے پاس آئے. کہا بھیا کیسے اجازت دوں؟ تم تو علمدار ہو. آقا فوج کہاں رہی؟ اب تو اجازت دے. حسین نے اجازت دی، جاؤ عباس خدا پانی کا انتظام کرو. جنگ کی اجازت نہیں دی. مشکیزے کو لیا، فرات کی طرف آئے. پہرا بیٹھا ہوا تھا فرات. ایک حملہ کیا. حملہ اتنا شدید تھا کہ پہرا ٹوٹا. علی کے شیر نے گھوڑے کو فرات میں ڈالا، پانی پہ قبضہ کیا، مشکیزے کو بھرا، ایک چلو پانی لیا اور فرات کے منہ پر مار دیا. کہنا یہ چاہتے ہیں کہ کیسے عباس پانی پیتا. ابھی تو سکینہ پیاسی ہے، ابھی تو زینب پیاسی ہے، ابھی تو میرا آقا حسین پیاسا ہے. لیکن کریم ہیں، کریم کے بیٹے ہیں، خود صبر کر لیا. آواز دیتے اسب باوفا تو بھی 3 دن کا تو پیاسا ہے، تو بھی تو 3 دن پانی پی لے. لیکن گھوڑے نے بھی پانی کی طرف رخ نہ کیا، پانی سے رخ موڑ لیا. وہ جانور اپنی زبان بے زبانی سے کہہ رہا ہے آقا کیسے پانی پی لوں؟ ابھی بھی خیمے سے الاتش کی صدائیں آ رہی ہے. ابھی سکینہ پیاسی ہے، ابھی حسین پیاسے ہیں. گھوڑے کو فرات سے نکالا، خیمے کی طرف چلے جا رہے ہیں. مصر سعد کی آواز گونج
समझी, हर तरफ से हमले होने लगे। एक मालूम ने छुप कर वार किया, एक हाथ पता हुआ, अलम को पकड़ा। दूसरा वार किया, अब्बास का दूसरा हाथ गिरा, कटा, अलम को पकड़ा, मशकीजे को दांतों से दबाया। एक तीर आया जो मशकीजे पर लगा और एक तीर अब्बास के आंख में लगा। अजीज रोने के लिए तसव्वुर काफी है। आपकी आंख में अगर तिनका चला जाए तो हाथ से निकाला जाता है। अब्बास की आंखों में तीर आया, कैसे निकाले? पैरों को उठाया, घुटनों से तीर निकालना चाहा, तालिब ने गुर्ज मारा। और ये इतनी बड़ी मुसीबत कि जब एक जाकिर ने शहादत पढ़ी तो जनाब सैयदा को ख्वाब में देखा। बीबी आके कह रही है, जाकिर तू मेरे बेटे अब्बास के पूरे मसाइल नहीं पढ़ता, शहजादी तमाम मसाइल पढ़े। कहा नहीं, वो मुसीबत तूने छोड़ दी जो सिर्फ मेरे बेटे अब्बास पर पड़ी, किसी पर मुसीबत नहीं पड़ी। शहजादी कौन सी मुसीबत? शहजादी फरमाती है, तूने गौर नहीं किया, करबला में जो भी जख्मी घोड़े से नीचे गिरता था पहले अपने हाथों को टेकता था, हाय मेरा अब्बास। मुंह के बल ज़मीन करबला पर आया, आवाज दी, आका गुलाम का आखिरी सलाम कबूल हो। कासिम ने पुकारा, या अम्मा अदरिकनी, है चचा मेरी मदद कीजिए। लेकिन अब्बास ने ये नहीं कहा। अब्बास ने कहा, आका गुलाम का आखिरी सलाम कबूल कीजिए। आवाज हुसैन के कानों तक पहुंची। जैसे ही आवाज पहुंची, आवाज अलान इनका सरा ज़हरी, अब्बास मेरी कमर टूट गई। मकाती में जो मिला है वो ये कि हुसैन चले, झुक के कुछ उठाया, सीने से लगाया, चंद कदम चले, फिर कुछ झुक कर उठाया, सीने से लगाया। आप समझ गए होंगे कि क्या उठाया? अरे भाई के कटे हुए हाथ। मकाती में तो ये मिलता है, लेकिन अजीजों शहादत क्या कह रही है? पहले हाथ कलम हुए, उसके बाद मशकीजे पर तीर लगा, फिर सर के ऊपर गुर्ज पड़ा। तो होना तो ये चाहिए, पहले अब्बास के लाशे तक पहुंचते, फिर हाथों तक पहुंचते, लेकिन नहीं, पहले हाथों तक पहुंचे, फिर लाशे तक पहुंचे, फिर तराई तक पहुंचे, जख्मी अब्बास तक। बस अजीजों तसव्वुर यही है और हकीकत यही है। जब हाथ कलम हो गए और मशकीजे पर तीर लग गया, पानी बह गया, तो अब्बास ने घोड़े से कहा, ऐ मेरे अस्बेबा वफा, अब मुझे खैमे में न ले जाना। मैं क्या मुंह लेके खैमे में जाऊंगा? घोड़े ने फरात के किनारे पहुंचाया। हुसैन अब्बास के पास आए। अब्बास ने आंखें खोली और कहा, मौला आप आ गए? कहा मौला मेरी एक तमन्ना है, एक ख्वाहिश है। कहा अब्बास क्या ख्वाहिश है? कहा मौला मैंने सुना है कि जब मैं इस दुनिया में आया तो सबसे पहले आपके चेहरे की ज़ियारत की। अब मैं इस दुनिया से जा रहा हूँ, चाहता हूँ कि सबसे पहले बस आपकी ज़ियारत करूँ। भैया अब्बास क्या तकलीफ है? कहा आका एक आंख में तीर, दूसरे में खून है, निकाल तो ना सके थे पैरों से तीर। एक आंख में तीर, दूसरे में खून। हुसैन ने अबा के दामन से अब्बास की आंखों का खून साफ किया। अब्बास ने हसरत भरी निगाह से हुसैन को देखा। आका एक वसीयत और है। कहा क्या? कहा आका मेरा जनाजा खैमे में न ले जाइएगा। आका मेरा जनाजा खैमे में न ले जाइएगा। अब्बास ने वसीयत की, हुसैन का दिल तड़पा। मेरे शेर, मेरी भी एक तमन्ना है। आका क्या? भैया अब्बास बचपन से लेकर अभी तक कभी भाई नहीं कहा, एक मर्तबा भैया कहो। अब्बास ने भाई कहा, रूह गुलशने जन्नत को परवास कर गई। अजीजों अब्बास ने क्यों वसीयत की थी? जब एक आलिम से पूछा गया कि अब हमारे बनी हाशिम बहुत तवील थे, लेकिन आपकी असल कब्र इतनी छोटी क्यों है? पता क्या है? कहा जब 11 मुहर्रम को सैयदे सज्जाद आए हैं, तराई के किनारे सबका लाशा उठा, अब्बास का ना उठ सका। जिस्म टुकड़े था, एक चटाई में लाश के टुकड़े रखे।
मुस्तफा